यहाँ से वार्म वेलकम से शुरू कर देता हूँ. Good morning, ladies and gentlemen. A warm welcome to our to all the dignitaries, R.C. Meena sir, Shri R.C. Meena sir, Shri uh, Dr. S. Gautam, Dr. Keshav Pujari, Shri Mansi Sisodiya, and Shri H.M. Chavda sir. And I request everyone to take their seats and kindly silent their mobile phones. I welcome you to the session titled From Orchard to Overseas Scaling Gujarat's Horticulture Export Potential. This session focuses on value addition, post harvest management, advanced technologies, and digital transformation to strengthen Gujarat's horticulture exports. To begin, I invite Shri H.M. Chavda, Director of Horticulture, for the welcome address. Namaskar, good morning, and very warm welcome to all respected dignitaries, poli- policymakers, scientists, exporters, farmers, entrepreneur, media person, and my dear colleagues. A special welcome to today's vibrant seminar. Uh, Sri R.C. Meena sir, Principal Secretary, Agriculture Department, Sri Pandya sir, Registrar Sri Cooperative Society, Mr. Arjun Goyal, Wageningen University, Netherlands, Dr. S. Gautam, Head Food Technology Division, Baba Atomic Research Center, Bombay, Dr. Keshav Pujari, former Associate Dean, Dapoli Agriculture University, Dapoli, Maharashtra, Mr. Mansiji Sisodia, Indic Agro, Sri C.M. Patel, Sri R.H. Ladani ji, Joint Director Horticulture. It is a great honor and privilege to welcome you all to this seminar titled From Orchard to Overseas Scaling Gujarat Horticulture Export Potential. Your presence today reflect our shared commitment and to strengthen the Gujarat horticulture sector positively it strongly in global market. Gujarat is blessed with diverse agroclimatic conditions that support the cultivation of high value horticulture crops such as the mango, pomegranate, coconut, date palm, kamlam, and many others. Region like Saurashtra and Kutch have emerged as a important hub of the fruits production, contributing not only to the farmer livelihood but also to the state's agriculture economy. In recent, horticulture has become a key driver of the growth, employment, and income diversification. However, to fully realize its export potential, we must focus on quality production, post-harvest management, value addition, cold chain infrastructure, certification standard, and strong market linkage. This seminar provides an important platform to discuss these challenges and explore practical solution. Today's discussion will help bridge the gap between the farmer, researchers, exporters, policymakers, ensuring that our produce meets the international standard and reach overseas market efficiently. By working together, we can transform Gujarat orchard into the global success stories. The potato is the global success story of our state. The international companies, McCain, Simplot, international company come in the Gujarat for farmer and processing production, and they produce the product and then export uh, out of out of the worldwide. I am confident that the knowledge shared, experience exchange, and partnership formed during this seminar will contribute significantly to scaling up the horticulture export and enhancing the farmer income. Once again, I extend a heartily welcome to all participants
and wish the seminar great success. Thank you. Thank you, sir. I now request all the dignitaries to please allow rearranging dais for presentation. Now, I invite Shri Mansi Sishodia from now. कोई नहीं चलेगा चलेगा. Now invite Shri Mansi Sishodia from India Agro to speak on beyond fresh fruit, mango processing and Check, check. Check, check. चेक चेक. भाई क्या हो गया यार ये? वो नहीं, वो नहीं चल रहा है. चेक 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 चेक. यार यहाँ पर बंद है. 1 मिनट. किसका? चेक 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 चेक. हेलो हेलो चेक चेक. देख एक बारी. कहाँ पर? चेक चेक. चेक चेक. હલો નમસ્કાર. અહીં પધારેલા બધા મહાનુભાવોનું હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આમ તો કેરી એટલે બધાના મોઢામાં પાણી આવે નામ લેતા જ. કેરી અને આપણે ગુજરાતમાં ઘણી બધી કેરીનો પાક થાય છે ને એમાં આપણી જે કેસર કેરી એક વર્લ્ડમાં ફેમસ છે. કેસર કેરી કેરીને ફળોનો રાજા કહેવાય છે. તેમાં પણ ગુજરાતની કેસર કેરી વિશ્વભરમાં ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. તે આગવી અને અનોખી ઓળખ ધરાવે છે. ગુજરાત આજે ભારતમાં કેરી ઉત્પાદન માટે અગ્રણી રાજ્યોમાં સ્થાન ધરાવે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં કેરીમાં એક્સપોર્ટનું પ્રમાણ પણ ઘણું વધ્યું છે અને લગભગ ભારતમાં આપણે વિશ્વમાં ભારત છે એ 40% કેરીનું ઉત્પાદન કરે છે. ભારત દેશ વિશ્વમાં કેરીના ઉત્પાદનના પ્રથમ ક્રમાંકે આવે છે. ગુજરાત એમાં કુલ 5 થી 7% યોગદાન આપે છે. મુખ્ય કેરી ઉત્પાદન કરતા જિલ્લાઓમાં વલસાડ છે, ગીર સોમનાથ છે, કચ્છ, સુરત અને હાલમાં જ વધારે પડતું જો કેરીનું ઉત્પાદન ઘણી જગ્યાએ પોરબંદરમાં પણ ઘણું આગળ વિકાસ થાય છે. પોરબંદરમાં પણ અને 24-25 દરમિયાન કેરીની ખેતી આશરે 1.84 લાખ હેક્ટરમાં કરવામાં આવી હતી, જે રાજ્યમાં કુલ બાગાયતના 37% જેટલું છે. અને ગુજરાતમાં કેરીનું ઉત્પાદન અંદાજે 12.72 લાખ જેટલું રહ્યું હતું. કેરીનો પાક એ મોસમ આધારિત છે.
એમાં ઘણી વખત વાવાઝોડું કમોસમી વરસાદની ઘણી બધી અસર થાય એની હિસાબે પાક ખરાબ થવાની પણ શક્યતા રહી છે. અને ઝડપથી બગડવાની પણ, કે કેરી એક પેરિસેબલ આઇટમ છે એટલે ઝડપથી બગડે છે અને એના માટે પ્રોસેસિંગ જરૂરી છે. કેમ કે જે કેરીને બગડતી અટકાવવા માટે પણ પેક હાઉસ છે, કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે, એની સગવડતા હોય તો કેરીને બગડતી અટકાવી શકીએ અને એના હિસાબે આપણે પૂરતો ભાવ અને ખેડૂતોને ફાયદો થાય છે. ભાવની અસ્થિરતા, કેરી એ પેરિસેબલ આઇટમ છે અને બગડવાની જલ્દી બગડતી હોય એટલે માર્કેટમાં ખેડૂતો જલ્દી એનો નિકાલ કરે છે. એના હિસાબે એક તો ભાવની અસ્થિરતા રહે છે, માર્કેટમાં જોખમ છે. કેમ કે ટ્રાન્સપોર્ટિંગમાં અને બગડવાની ક્ષમતા વધારે હોવાથી ટ્રાન્સપોર્ટિંગમાં પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે, પણ માર્કેટમાં પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. અને લગભગ 20 થી 30% જેટલું ઉત્પાદન એ બગડવાની શક્યતા રહે છે ઉત્પાદન લીધા પછી. અને ફળને લાંબા સમય સુધી ટકાવવા માટે પ્રોસેસિંગ જરૂરી છે, જેમ કે પેક હાઉસ, કોલ્ડ સ્ટોરેજ, સોર્ટિંગ ગ્રેડિંગ યુનિટ. એના એટલે જો પેક હાઉસમાં રાખવામાં આવે, કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં કેરી રાખવામાં આવે ને યોગ્ય સાર સંભાળ રાખવામાં આવે તો એનો જે ખરાબ થવાનો સમય છે એને આપણે ઘટાડી શકીએ અને જેથી કરીને ફળને લાંબા સમય સુધી સારી રહી શકે. ગુણવત્તા અને સુરક્ષામાં પણ પ્રોસેસિંગ જરૂરી છે. કે પેક હાઉસ છે, યોગ્ય સાફ સફાઈ કરવામાં આવે તો એની જે ગુણવત્તા અને જળવાઈ રહે છે. અને જો પ્રોસેસિંગથી ખેડૂતોની આવકમાં પણ વધારો અને સ્થિરતા આવે છે. કેમ કે આજે આપણે વધારે પડતો સમય સુધી સાચવી શકીએ, પલ્પ બનાવીને આગળ એનું સ્ટોરેજ કરી શકીએ અને વેચી શકીએ. એના માટે થઈ અને જો પ્રોસેસિંગમાં પેલું ખેડૂતોની આવકમાં પણ વધારો થઈ શકે, જોખમ વ્યવસ્થા પણ સારી રીતે થઈ શકે. કેમ કે બગડવાનું જે જોખમ છે એ આપણે એક પેક હાઉસમાં સાચવવાથી અને યોગ્ય સાર સંભાળ રાખવાથી એનું જે બગડવાનું જોખમ છે એ ઘટી શકે છે. પ્લસ પ્રોસેસિંગ અને ક્લિનિંગ, ગ્રેડિંગ, સોર્ટિંગ અને પેકેજિંગ કરી અને એને વધારે સાચવી શકાય છે અને જેનાથી વિદેશ નિકાસમાં પણ આપણને ફાયદો થાય છે. કેમ કે અત્યારે કેરીની ડિમાન્ડ વિશ્વમાં ગુજરાતની કેસર કેરીની ડિમાન્ડ છે અને એને જો યોગ્ય સાર સંભાળ રાખી અને નિકાસ કરવામાં આવે તો કેરી ઉત્પાદન કરતાં ખેડૂતોને ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. અને કેરીમાંથી પ્રોસેસિંગ કરીને પલ્પ બનાવી શકાય, રસ અને જ્યુસ બનાવી શકાય. જેમ કે આપણે પેપરબોટ આપણે એક ટેટ્રા પેકમાં જે છે તો અત્યારે જે બીજા કોલ્ડ ડ્રિંક્સની જગ્યાએ પણ આપણે પેપરબોટનો યુઝ કરી મેંગો જ્યુસનો યુઝ કરી શકાય અને જેનાથી એક હેલ્થને પણ સારું. અમુક જે કોલ્ડ ડ્રિંક્સને નુકસાન કરે છે એની જગ્યાએ જો કેરીનો રસ કે કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં લેવામાં આવે તો એ પણ લોકોની હેલ્થમાં પણ ફાયદો કરે છે. પ્લસ એમાંથી જામ બનાવી શકાય. પછી કેરીને ડિહાઇડ્રેટ કરી અને ડ્રાય કરીને લાંબા સમય સુધી યુઝ કરી શકાય અને સ્ટોર પણ કરી શકાય. અને કાચી કેરી જે આપણે લગભગ ગુજરાત છે એ દરિયા કિનારે આવેલો વિસ્તાર છે એટલે વાવાઝોડું અને કમોસમી વરસાદના હિસાબે ઘણીવાર કેવું થાય કાચી કેરી પણ ખરી જાય. એટલે એનું જો અથાણા અને ચટણીમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે તો એનું પણ પ્રોસેસિંગ કરી અને લાંબો સમય સુધી યુઝ કરી શકાય. પછી બેકરીની આઇટમમાં પણ પલ્પને બધું યુઝ કરી શકાય, મેંગો જામ યુઝ કરી શકાય છે. પછી આઈસ્ક્રીમ બનાવી શકાય ડેરી ઉદ્યોગમાં, કોલ્ડ ડ્રિંક્સમાં પણ યુઝ થઈ શકે છે. અને સરકારની ઘણી બધી સહાયની યોજનાઓ છે, જેમ કે કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે એમાં પણ બહુ સારી સહાય મળે છે. અને એમાં પણ જો ખેડૂત સંગઠનો જેમ કે એફપીઓ છે તો એફપીઓને વધારાની પણ સહાય મળે છે. 10% વધારાની સહાય છે. જે જનરલ 50%ની સબસિડી મળે છે એની સામે એફપીઓને 60% જેવી સબસિડી મળે છે. એટલે એ પણ એક વધારે જો ફાયદો લઈ શકાય સરકારી સહાયનો. પેક હાઉસમાં પણ ઘણી બધી સબસિડીને સહાય છે. એવી રીતે પ્રોસેસિંગ યુનિટોમાં પણ છે અને એનાથી વિદેશ નિકાસ પણ વધી શકે. કેમ કે જો આપણે પેક હાઉસ કે પ્રોસેસિંગ યુનિટ નાખી પલ્પની નિકાસ કરી શકાય. જેમ કે ભારતમાં ગયા વર્ષે ફ્રેશ મેંગો જે નિકાસ થઈ એ 507 કરોડ રૂપિયા આજુબાજુ નથી, જ્યારે એનો પલ્પ છે એ 722 કરોડ રૂપિયાનું જે નિકાસ કરી શકીએ. એટલે જો પલ્પ બનાવી અને પ્રોસેસિંગ કરી અને એનો જો નિકાસ કરીએ તો એમાં ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે. ગુજરાત સરકાર છેલ્લા 10 વર્ષથી મેંગો ફેસ્ટિવલ કરે છે, જેનાથી ખેડૂતોને બહુ મોટું માર્કેટ મળી શકે છે અને માર્કેટ લિંકેજ થઈ શકે અને ખેડૂતોને એના પણ આવક વધારી શકાય. એફપીઓ અને સ્વસહાય જૂથો દ્વારા જો મળી અને સબસિડી પણ મળે, એફપીઓ છે ખેડૂત સંગઠન, એને કોલેટ્રલ ફ્રી લોન મળે છે, સબસિડી મળે છે, તો એના દ્વારા પણ પ્રોસેસિંગ કરી અને એક કેરીને પાકમાં ઘણો બધો ફાયદો થઈ શકે.
ટેકનોલોજી અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં માની લો ગામા રેડિયેશન છે, તો એ ગામા રેડિયેશન ઇરેડિયેશન કરી અને જેની બગડવાની ક્ષમતા છે એની સેલ્ફ લાઈફ વધારી શકાય કેરીની, જેથી કરી અને એક્સપોર્ટમાં ઘણો ફાયદો થાય છે. ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ દ્વારા પણ આપણે પલ્પનું સેલિંગ કરી શકીએ, કેરીનું વેચાણ કરી શકીએ, પછી પ્રોસેસિંગ, પેકેજ, બ્રાન્ડિંગ ને માર્કેટિંગ એનાથી પણ ઘણો ફાયદો થઈ શકે અને પ્રોસેસિંગ કર્યા પછી એનું બ્રાન્ડિંગ કરી અને વધારે વેચાણ કરી શકાય. ગુજરાતમાં કેરીનું ઉત્પાદન વિશાળ હોવા છતાં કેરી આયાત વ્યવસ્થામાં ઘણી બધી મર્યાદાઓ છે, તકલીફ છે, તો પ્રોસેસિંગ દ્વારા એનો હલ કરી શકાય. અને વેલ્યુ એડિશનથી કેરીના ઘણું બધું લાંબા સમય સુધી આપણે જેની પ્રોડક્ટ છે એને ફ્રીઝ કરી અને ટકાવી શકીએ, જેથી આગળ જતાં પણ જે બગડવાની જે 40%, 30% થી 40% જે પાક ફેલ થઈ જાય છે એનું પ્રોસેસિંગ દ્વારા આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવી શકીએ અને એના જે નુકસાન છે એમાં પણ ઘટાડો થાય અને ખેડૂતોનો વિકાસ થાય અને ખેડૂતોને યોગ્ય વળતર મળી રહે. થેન્ક યુ. Thank you, sir, for sharing us with your enriching ideas. Next, I invite Dr. Keshav Pujari, ex-Associate Dean, Dapoli Agriculture University, to speak on mango production technology and post-harvest management. Thank you. I'm thankful to the organizers for giving me opportunity to discuss with the Gujarat farmers. I will discuss about my mango production और ये जो हैंडलिंग, पोस्ट हैंडलिंग के बारे में टाइम बहुत लगता है, लेकिन मैं अभी 10-15 मिनट में कवर करने की कोशिश करूँगा. हर एक एस्पेक्ट में 1 मिनट में बोल सकता हूँ. आपको मालूम है कि मैंगो दुनिया का सबसे अच्छा फ्रूट है और इसमें हम एक्सपोर्ट 10 मिलियन तक कर्ज रखते हैं. उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग. अगर अच्छी नहीं हो तो हमारे 30% लॉसेस हो सकते हैं. मैंगो में आपको पता है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डोंट सेल मैंगोज, क्योंकि मैंगो के बारे में उनको अल्फांसो केशर कुछ पता नहीं, उनको आम ही जानते हैं वो लोग. लेकिन आपको पता है कि इंडिया में जो है ना 1500 वैरायटीज़ हैं, उसमें जो 20 कमर्शियल हैं, उसमें से अल्फांसो और केशर हम एक्सपोर्ट करते हैं. तो अगर आप उस पैकेट में विटामिन ए कंटेंट, क्योंकि इंडिया की जो 2 वैरायटी हैं केशर और आप अल्फांसो, ये उसमें ज़्यादा विटामिन ए कंटेंट है दुनिया के सबसे मैंगो में. तो आप उस पैकेज पर लिखोगे हाई विटामिन ए कंटेंट, तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि बाहर के लोगों को दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, वो हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानते हैं. तो उनको केशर मैंगो से साथ डार्क लेटर में लिखे हाई विटामिन ए कंटेंट मैंगोज, तो ताकि वो परचेस करें. आपको पता है, मैंने अभी बताया कि 1500 वैरायटी हैं, लेकिन ज़्यादातर है वो केशर और अल्फांसो हम एक्सपोर्ट करते हैं. आप जानते हैं सब लोग, तो पुराना प्लांटेशन है वो 10 बाय 10 मीटर है, वो ज़्यादातर 10 मीटर के प्लांटेशन है. लेकिन आपको अगर अच्छा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन करना चाहिए. हाई डेंसिटी में आप 5 बाय 2 मीटर से कर सकते हो, 5 बाय 4 मीटर कर सकते हैं, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में 5 बाय 2 मीटर कर सकते हैं. उसके आपका प्लांट पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, ताकि आपका उत्पादन जो है, जो आप एवरेज टन है वो 5-7 टन है, तो आप वहाँ से 20 और 25 टन जा सकते हैं विदिन 10 ईयर्स. 10 साल में आप पहुँच सकते हैं. ये टेक्निक पुराना वाला है कि जो आप इरिगेशन बड़े वाले पेड़ हैं उनको कैसे कर सकते हैं. ये फर्टिलाइजर्स हैं, खाद डालने के कैसे खाद डाल सकते हैं 1 साल से 10 साल तक, और उसके बाद आप कितना मिलेगा, 5-7 टन मिलेगा. लेकिन आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सघन या घन या सघन लागवड करनी चाहिए. और आपको पता है कि जो इंडिया की जो प्रजातियां हैं उसमें क्या हर साल प्रोडक्शन नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम है. उसके लिए हमें हर साल, क्योंकि एक्सपोर्ट करना है, तो हर साल आपको उपज लेनी चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए, उत्पन्न आपको ईल्ड मिलना चाहिए. तो उसके लिए पैक्लोबुटाजोल आप यूज़ कर सकते हैं. गुजरात में आप अगर अगस्त एंड तक ये डालोगे तो आपको दिसंबर में फ्लावरिंग हर साल आ जाएगी.
इसके लिए आपको इस तरह अप्लाई करना है, जैसे आप खाद डालते हैं उसे के पीछे वाला थोड़ा इसमें एक रिंग करके उसमें जो केमिकल है वो पानी में मिला करके आप डाल सकते हैं। इस तरह का आप अगस्त में डाल दोगे तो दिसंबर में फ्लावरिंग आ सकती है, और ये उसके बाद आपको दिसंबर में यह बोर आ जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेजर समस्या है कि अभी देखो ज़्यादा ठंड पड़ गई तो बोर आ गए, लेकिन ज़्यादातर आपको पता है ये वाटाना स्टेज है, फिर गोटी स्टेज है, और एक स्टेज है अंडाकृति वाला जो है, उसे में ज़्यादातर ड्रॉप हो जाता है। एक स्टेज आपको पता है कि पी स्टेज में, यह वाटाना स्टेज कहते हैं, उसमें 80% ड्रॉप हो जाता है। मार्बल स्टेज है, उसके आपको गोटी कहते हैं, उसमें आपको 30% ड्रॉप आ जाता है, और एक स्टेज में 10 से 15% आता है। लेकिन लास्ट स्टेज में अगर ड्रॉप हो गया, आम गिर गए, तो आपको प्रोडक्शन बहुत कम मिल गया। इसके लिए हमें इस पर काम किया है, और इसको आप क्या करना है, इसी स्टेज पर CPPU करके एक केमिकल है, अगर वो 2 ml पर लीटर आप छिड़का दोगे तो आपका पहले 2 स्टेज में ड्रॉप कम हो जाएगा, और लास्ट स्टेज में उसका साइज बढ़ेगा, ताकि आप 20 टन तक जा सकते हैं। हमने केसर पर ज़्यादा काम किया है कि जहाँ ड्राई एरिया है, ग्रेप है, जहाँ ग्रेप नहीं हो सकती, पानी की समस्या है, वहाँ आप सावलस गांव करके है सांगली में, वहाँ हमने ये प्रोजेक्ट फार्मर्स के फील्ड में तैयार किया। और यहाँ हमने देखो ये कैनोपी मैनेजमेंट है, कैसे करना है कैनोपी। तो जब ये पेड़ जब ये आपका हाइट 60 सेंटीमीटर तक आ जाएगा तो उसको काट देना चाहिए। उसके बाद आपको 3 शूट्स लेने हैं, उसके बाद 2 करने के फिर उसको 3 शूट लेने हैं। ऐसा करके आप ये 3 साल में 100 शूट उसमें होने चाहिए, ताकि आपको कम से कम 50 फ्रूट मिल जाएंगे। इस तरह का कैनोपी मेंटेन करेंगे तो आपको अच्छी फसल मिल जाती है। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए ये फर्टिगेशन शेड्यूल है। आपको अगर हाई डेंसिटी करना है, सघन हाई डेंसिटी करना है, 20 टन जाना है, तो उसके लिए आपको जुलाई सितंबर हर हफ्ते को आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद 1 महीना आपको रेस्ट लेना है। उसके बाद फिर जनवरी से मई में आपको 20 डोसेज में लेना है। ये पूरा शेड्यूल है उसका, ये फर्टिगेशन का शेड्यूल है। ये आपको पानी कैसे देना है उसका डिटेल, हर महीने में कैसे देना है उसका डिटेल शेड्यूल बना दिया है। ये कैनोपी मैनेजमेंट कैसे कैनोपी होता है, ये देखो ये केसर का प्लांटेशन है, जिस वो ड्राई एरिया में हमने किया था काम। ये इसको मटका सिस्टम है, इसको डिफ्यूज़र बोलते हैं इंग्लिश में। ये मटका सिस्टम है, उसको ये लगा दिया तो फर्टिलाइज़र, खाद और पानी सही तरह से मिल जाएगा, और आपको ज़्यादा कम पानी लगाने के बाद जो बावजूद भी आपको ज़्यादा फल मिल सकता है। नेक्स्ट। ये देखो ऐसी फसल आ जाती है, आप 10 साल में 20 टन, अगर आप अल्ट्रा डेंसिटी लोगे तो आप 8 साल में ही 20 टन आप माल ले सकते हैं। ये एक्चुअली हमने फार्मर्स के फील्ड में काम किया है, और इसका प्रेजेंटेशन हमने ऑस्ट्रेलिया में किया था कि हाई डेंसिटी महाराष्ट्र में ये केसर में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। पता है आपको, आपके घर फार्म में बड़े बड़े ऑर्चर्ड होते हैं, और उसमें ये क्या होता है, ये क्या फ्रूट आउट नहीं सकते, और ये पूरा एक टिम्बर जैसा बन जाता है। आप आम लगा रहे हो या टिम्बर कर रहे हो, ये ध्यान में रखना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, रिजुवेशन करना चाहिए, पुनर्जीवन उसका करना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है कि 6 मीटर या 8, अगर आपका पेड़ 40 साल से बड़ा है तो 8 मीटर पर, अगर आज 40 कम है तो उसको आप इस तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसको शूट्स आ जाएंगे, शूट आने के बाद उसको क्या करना है, बहुत सारे शूट आ जाएंगे तो उसको आपको 3 या 4 शूट रखने हैं। बाद में 1.5 महीने के बाद फिर उसको प्रूनिंग करना है, 2 महीने के बाद उसको करना है। ऐसे करके आपको इस तरह से आपको शूट मेंटेन करना है, ताकि आप इस तरह से आप उसका ये बना सकते हैं, पौधा बना सकते हैं, और आप उसको पैक्लोपोटासाल डाल के हर साल आपको ईल्ड मिल जाता है। उसके बाद जब फ्रूट तैयार हो जाते हैं तो हार्वेस्टिंग करना है। हार्वेस्टिंग के लिए आप ये लोकल है ना, ये लोकल कभी नहीं यूज़ करना। उससे क्या हो जाता है, सैप बर्न हो जाता है, डेट टूट जाता है वहाँ से पेडंकल, और उसमें वो काला डग्गा आ जाता है। आपका आम अच्छा है
लेकिन काला दाग आने से मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। इसके लिए आपको शार्प वाले ये हमारे यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया, ये हार्वेस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आम तैयार हो जाता है उसको सॉर्टिंग की ज़रूरत है। उसके लिए आपको जो डिफेक्टेड हैं या शेप अच्छा नहीं है या उसको कुछ इंजरी हो गए, उस आम को आप अलग रखें और जो अच्छा वाला है वो आम आप एक्सपोर्ट के लिए ले सकते हैं। जनरली आपको 120 से 130 दिन से लग सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कलर जो है डार्क ग्रीन से आपको लाइट ग्रीन हो जाता है, बाद में आपको उसका शोल्डर है वो ऐसा वो बढ़ जाता है। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए अच्छा वाला है, तो आपको एक बकेट में पानी डालकर उसको हमें डुबो देना है। जब ये ऊपर रहेगा उसका मतलब ये इमेच्योर है, अच्छा नहीं है। इस आम को आप क्या कर सकते हैं, इसमें 40% आम आ जाते हैं आपके हार्वेस्टिंग में, तो उसको आप अचार के लिए या लोकल बेचने के लिए रख सकते हैं। और नीचे जो जाता है वो अच्छा क्वालिटी का रहता है, आप एक्सपोर्ट के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा वाला टेक्निक है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड है। इसको आपको पता चल जाएगा कि आप पहले डालोगे तो ऐसा वाइट आ जाता है, ये आम अच्छा नहीं होता। उसके बाद थोड़ा पीला होता है। सबसे अच्छा वाला ये है 120 से 130 वाला जो है पीला रंग हो जाएगा और उसके लेंटिसेल वाइट स्पॉट आते हैं, उसी वक्त ये अच्छा हार्वेस्टिंग का टाइम है। उसी आम को आपको हार्वेस्ट करना है। ग्रेडिंग, अगर एक्सपोर्ट के ग्रेडिंग करना है तो ये चाहिए A+ वाला 300 ग्राम से ज़्यादा है, A वाला 251 to 300 ग्राम, B वाला है तो 226 to 250 ग्राम, C वाला 201 से 225 और D वाला C D वाले आप लोकल यूज़ कर सकते हैं, AB वाले आप एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इरिडेशन आपके गौतम साहब इसके बारे में बताएंगे। हमने ये BRC का ट्रायल लिया था, ये लासलगांव का प्लांट है, अभी बॉम्बे में भी हो गया है। वहाँ से आपको इरिगेशन 400 ग्रेज इरिडेटेड अगर करोगे तो आप USA डाल सकते हैं। ये हमने वो ट्रायल लिया था, उसमें हमें पता चल गया कि अगर बायोसिप यूज़ करें और इरिडेट कर दिया जाए 400 ग्रेज में और आपको 13 डिग्री में रखेंगे तो आप 1 महीने तक रख सकते हैं। दैट मीन्स आपको सी से आपको लंदन भेज सकते हैं। ये अगर आपको ऑस्ट्रेलिया या यूरोपियन कंट्रीज में भेजना है तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट आपको देना पड़ेगा, उसके लिए 48 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 10 मिनट्स। अगर आपको जापान भेजना है तो आप जापान की जो मशीनरी है वेपरी ट्रीटमेंट, उसमें आपको 48 डिग्री फॉर 10 मिनट्स वो रखना है। उसमें आप टोटल पीरियड उसका 2 घंटे रहता है और ये आप इस इंस्ट्रूमेंट के बाद आप जापान भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट के लिए क्या है, तो केसर के लिए अगर आपको मिडिल ईस्ट भेजना है तो 200-250 ग्राम है, नीदरलैंड के लिए 225-250 ग्राम है, यूके के लिए भी वही है, जापान के लिए 250 से 300 ग्राम और USA के लिए 250 से 300 ग्राम। एक ग्रेड वाला आम है, वहाँ आप भेज सकते हैं। पैकिंग के लिए 1 डजन का है, स्टोरेज टेम्परेचर 13 डिग्री रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और एक्सपोर्ट आप बाय सी सिर्फ मिडल ईस्ट भेज सकते हैं, ज़्यादातर आप इंग्लैंड पर जा सकते हैं, लेकिन बाकी सब जगह आपको एयर से भेजना पड़ेगा क्योंकि अभी तक टेक्नोलॉजी तैयार नहीं, क्योंकि कम से कम 30 दिन लग जाते हैं और हमारे पास तो 25 डेज़ की टेक्नोलॉजी है, तो आपको एयर से आपको भेजना पड़ेगा। उसमें आपको एक्स्ट्रा ग्रेड और स्पॉटलेस जो आम है वो क्लास 1 लिखा जाता है और A और सेकंड ग्रेड के जो है उसमें ब्रूजनेस 5% आता है, तो उसको आपको B ग्रेड समझा जाता है। ये मैंगो ग्रेडिंग मशीन्स है, हर सेंटर में है, उसको अब वेइंग मशीन से ग्रेड कर सकते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा से कम दवाई करनी पड़ती है, उसके लिए आपको बैगिंग करना ज़रूरी है ताकि फ्रूट फ्लाई जो इम्पॉर्टेंट मक्खियाँ जो आती है वो उसको आपको दूर रखना है, क्योंकि बाहर वाले ले नहीं सकते, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय देयर ऑर्चर्ड्स, तो उसके लिए आपको बैगिंग करना ज़रूरत है। पकाने के लिए आपको कैल्शियम कार्बाइड यूज़ नहीं करना चाहिए, वो बैन है, तो उसके लिए आपको इथिलीन गैस हैं वो 100 ppm डाल करके आप पका सकते हैं। आप पैकेजिंग, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो देयर आर 14 पैकेजिंग सिस्टम, तो आप उसमें से बाम्बू बास्केट, वुडन बॉक्स ये नहीं यूज़ करना है, आपको कॉरुगेटेड फाइबर बॉक्सेस, प्लास्टिक क्रेट्स या फोम नेट या थर्मोपेरिंग, एयरटेल्ड और मोल्डेड, इस तरफ से आपको पैकेज करना चाहिए। ये देखो इसमें क्या ब्रूजिंग हो सकता है, ये लोकल मार्केट के लिए अच्छा है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद ये वुडन क्रेट है, उसमें क्या हो जाता है, आप उसमें आम दबा कर बेच देते हैं, पैर रखते हैं, उसको नीला खिला ठोकते हैं, तो इसको हर आम को इंजरी हो सकती है, तो उसके लिए ये भी एक्सपोर्ट के लिए अलाउ नहीं है।
दिस इज कोरुगेटेड फाइबर बॉक्सेस। यही अच्छा तरीका है जो आप इसमें एक्सपोर्ट करके भेज सकते हैं, ताकि हर कंपार्टमेंट के लिए अलग अलग रहता है और दे आर सेफेस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ये नेट आपको फ्रूट फोम नेट भी आप यूज़ करते हैं, हर एक फ्रूट आपको अच्छी तरह से आपको रख सकते हैं। मोल्डेड ट्रेड भी आज बाजार में आ गए, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये एक इंटेलिजेंट पैकिंग है। इसमें क्या होता है कि कई देशों में आम कब खाना है उनको पता नहीं रहता, तो उसके लिए ये पैकेजिंग टेक्निक है। उसमें जब रेड कलर है ये देखो, ये जो है ना, ये जब ऑरेंज हो जाए तो उसका हाफ राइप हो गया। जिनको हाफ राइप खाना है, जैसे यूएसए में खाते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। और जब ये येलो इंडिकेटर हो जाएगा तब इसका मतलब ये आम खाने के लिए योग्य है। तो आप जिस कंट्री में भेजना चाहते हो, इस इंटेलिजेंट पैकिंग अगर आपने रख दिया तो आपका आम सही तरह से उपयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्ट, जनरली आप ट्रांसपोर्ट जो है वो रात में करेंगे ताकि उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। रोड ट्रांसपोर्ट आपके लिए उसको प्रॉपर वेंटिलेटेड वो कार्गो यूज़ करना चाहिए। और जनरली रेफ्रिजरेशन 13 डिग्री पर रखना चाहिए। एयर के लिए आप भेज सकते हैं, लेकिन जो टेम्परेचर है वो 13 डिग्री ही रखना चाहिए उसमें। सी के लिए भी 13+1 डिग्री टेम्परेचर रखना चाहिए। लेकिन आप आज गल्फ या यूके तक ही आप सी ट्रांसपोर्ट करते हैं। सी ट्रांसपोर्ट में खर्चा बहुत कम आ जाता है एज़ कम्पेयर टू एयर ट्रांसपोर्ट। लेकिन हमारे लिए टेक्निक उपलब्ध है वो आप सिर्फ गल्फ के लिए है या इसके लिए हो सकता है। आप बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ओनली एक्सपोर्ट नहीं है। जब बचा हुआ आम उसको क्या करेंगे, अगर ग्रुप करके आपका कोऑपरेटिव मिल्क कोऑपरेटिव ग्रुप बना करके आप डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके लिए आपको पिकल, स्क्वैश, जाम, चटनी, प्रिजर्व और ब्राइन को इंटरनेशनल मार्केट हैं। और ज़्यादातर आम पल्प के रूप में बाहर भेजा जा सकता है। ड्राई फ्रूट में पल्प, RTS, स्क्वैश, जाम, जेली जैसे प्रोडक्ट बना सकते हैं। दूसरी बात ये है, आप एक्सपोर्ट से कितना कमाओगे। आपका आम 40 रुपये से 80 रुपये किलो जाता है, लेकिन आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आमदनी मिल सकती है। जैसे कि आप पल्प बनाओगे तो पल्प का कॉस्ट आपको 200 या 250, यहाँ 180 है तो वहाँ आप 250 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप उसको चिप्स, इंटरनेशनल में इंडियन मैंगोज आर हाईली प्राइस, वहाँ 400-500 रुपये के लिए, जो 80 रुपये का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको 400 रुपये उसको मिल जाते हैं। अगर आप मैंगो बार करेंगे तो उसको 800 रुपये आपको मिल सकते हैं। तो नॉट ओनली आप आम बेचेंगे, उसके प्रोसेस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा आमदनी मिल सकती है, ज़्यादा उत्पन्न मिल सकता है। मार्केटिंग के लिए आपके पास बिग रिटेल मार्केट है, रिटेल चेन भी है, उसके साथ भी आप कोलैबोरेशन करके, जैसे रिलायंस, ITC, आदित्य बिरला ग्रुप है, और बिग बाज़ार, फूड बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, चोपल फ्रास और नामधारी फ्रेश, ऐसे मार्केट है, उससे भी आप ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं आपको। धन्यवाद। अगर आपको आम के बारे में, क्योंकि 10 मिनट में बहुत मुश्किल है, तो अगर आपको कोई समस्या है फार्मर्स की तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। 9423052601, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, Doctor, for bringing such an important message to the floor. I now invite Dr. S. Gautam, Head of Food Technology Division, Bhabha Atomic Research Center, to present on increasing shelf life and exportability of mango and other horticulture products using nuclear technology. आप सबों को सादर नमस्कार। ठीक है, स्लाइड नहीं लगाएगा? नहीं, मेरा स्लाइड है। पूर्व के वक्ताओं ने आपको मैंगो के बारे में बताया है। मैं आप कुछ और प्रोड्यूस के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जिसके सेल्फ लाइफ को बढ़ा के एग्रीकल्चर की स्थिति में आप बेनिफिट पा सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ज़्यादा इम्फेसिस दूंगा रेडिएशन टेक्नोलॉजी के बारे में, न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में। कल इनॉग्रेशन में आप सब जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुना होगा, लास्ट में उन्होंने शांति बिल का भी जिक्र किया था।
न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्राइवेटाइजेशन पर। फूड सेक्टर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पहले से ही प्राइवेटाइज है, तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा मैंने डाटा गुजरात के बारे में लेने की कोशिश करी है यहाँ आने से पहले। तो आप देखेंगे इंडिया फ्रूट्स के प्रोडक्शन में हमारे देश की स्थिति बहुत ही अच्छी है और हमारा ग्रोथ भी बहुत बढ़िया हो रहा है। टाइम कम है इसलिए मैं पर स्लाइड ज़्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, बट आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमसे बाद में डिस्कस कर सकते। वेजिटेबल्स में भी देखेंगे तो आफ्टर चाइना हमारा पोजीशन बहुत ही बढ़िया है वर्ल्ड में। ओकरा, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, सब इनके प्रोडक्शन में हम काफ़ी आगे हैं। गुजरात के बारे में आप देखेंगे तो गुजरात का मैंने देखा है, हालांकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अराउंड 17% प्रोडक्शन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का यहाँ पे है। अब एक जनरल सिनेरियो में बताता हूँ। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ही ज़्यादा है और FAO के डाटा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 1/3 लॉस हो रहा है। हमारे कंट्री में फिगर और भी ज़्यादा है। और जब हम लॉस की बात करते हैं तो आपको 3-4 फैक्टर और सोचना पड़ेगा। एक केवल फूड का ही लॉस नहीं है, 20% लॉस ऑफ द ग्लोबल लैंड है, क्योंकि आपका लैंड जिसमें आपने पैदावार किया और वो लॉस हो जाता है तो इनडायरेक्टली आपके लैंड का भी लॉस है, वाटर का भी लॉस है। एग्रीकल्चर में इरिगेशन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 70% वाटर का लॉस होता है। आप एनर्जी भी कंज्यूम करते हैं इरिगेशन के लिए और प्लाविंग के लिए डिफरेंट वेज, तो 32% ऑफ एनर्जी का लॉस है। और अभी आप सब जान रहे हैं कि क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन हो रहे हैं, कार्बन क्रेडिट की भी बात चली है सारे सेक्टर्स में। तो यहाँ पे देखेंगे 8% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इमिशन फूड वेस्ट के चलते हो रहा है। तो अगर फूड वेस्ट को कंट्रोल करते हैं तो ये चारों प्रॉब्लम को भी आप पार्शियली एड्रेस कर सकते हैं। रहा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात, ये डॉक्टर भाभा का फोटोग्राफ है, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक हैं। इन्होंने सबसे पहले IAEA में पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के सेशन को चेयर किया था बाबा सर ने, और उन्हीं के द्वारा पहला प्लांट है जो BRC में एस्टेब्लिश हुआ। अभी भी वो फंक्शनल है। अभी करंट स्थिति में आपको बताऊंगा क्या है। तो इन्होंने फूड रेडिएशन और यू कैन से फूड सिक्योरिटी के लिए रेडिएशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्पफुल हो सकता है, ये आज की कल्पना नहीं है, डॉक्टर भाभा की कल्पना है। 1967 में इन्होंने प्लांट, ऑफकोर्स ये प्लांट एस्टेब्लिश हुआ उनके डेथ के बाद, बट शुरुआत उन्हीं की हुई है। और जहाँ हम रेडिएशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसमें 2 रेडियो आइसोटोप्स है, कोबाल्ट 60 और सीजियम-137। उसका एनर्जी इस रेंज में आता है कि जो हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव सब फुलफिल हो जाए, बट फूड में कोई भी निगेटिविटी उसे क्रिएट नहीं होती है। आप एक्सरे भी यूज़ कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम भी यूज़ कर सकते हैं सर्टेन एनर्जी लेवल तक। ऑलमोस्ट इस टेक्नोलॉजी को सारे इंटरनेशनल रेगुलेटरी एजेंसी और स्टैट्यूटरी बॉडी ने अप्रूव किया हुआ है, रिकमेंड किया हुआ है। अभी 70 देशों में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। WHO हुआ, FAO हुआ, IAEA है, FAO है, USDA है, फूड सेफ्टी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोडेक्स एलिमेंटेरियस एंड इवन आवर FSSAI। तो रेगुलेशन के मान इवन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो भी सर्टेन कम्युनिटी के लिए दे हैव अप्रूव्ड। सो अप्रूवल जहाँ तक बात है, टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट इंटरनेशनली वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेगुलेशन है। शुरू में हमारे अप्रूवल्स बहुत प्रोडक्ट स्पेसिफिक थे, 1-2 कम्युनिटी के लिए थे। पर ये हमारा लेटेस्ट अप्रूवल है, 2016 में गजट नोटिफाई हुआ। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या करी है, सारे फूड को डिफरेंट क्लासेस में रख दिए। तो आप देखेंगे 8 क्लासेस में सारे फूड रखे हैं। तो अभी आप अगर कोई भी नया प्रोडक्ट करना चाहते हैं रेडिएशन प्रोसेसिंग, तो भारत सरकार से आपको अलग से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी इन्होंने ग्रुपिंग कर दी है फूड को। जैसे सीरियल्स कर दिया, पल्सेस कर दिया, तो कोई भी पल्स कर सकते हैं, कोई भी सीरियल कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स कर सकते हैं। ऐसे आज मैंगो का किया, कल को टोमेटो करना है, तो आपको अलग से परमिशन की ज़रूरत नहीं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो करंट स्टैंड है, सारे फूड के लिए उन्होंने रेडिएशन प्रोसेसिंग को अप्रूवल दिया हुआ। फूड ही नहीं, अगर आपके प्रोसेस प्रोडक्ट है, रेडी टू ईट प्रोडक्ट है, प्रोसेस प्रोडक्ट है, जैसे पुजारी साहब दिखा रहे थे मैंगो स्लाइस एक्सेट्रा, उसको भी अगर आप इरेडिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसके लिए सेपरेट अप्रूवल की जरूरत नहीं। नाउ हम इसको रेडिएशन प्रोसेसिंग से प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, जैसे लॉसेस का प्रॉब्लम मैंने बताया। ये पोटैटो की डिफरेंट वेराइटीज़ है जो इंडिया में ग्रो होती है। इसमें बहुत सारी वेराइटी है जो प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम रेडिएशन प्रोसेसिंग करते हैं
तो पोटैटो को बिना केमिकल के, बिना CIPC के हम 8 महीने तक रख सकते हैं हायर टेम्परेचर पे। जनरली कोल्ड स्टोरेज में हम 4-5 के आसपास में रखते हैं, 3 से 4 के बीच में। यहाँ पे आप 14 डिग्री पे रख सकते हैं, तो आप एनर्जी भी बचा रहे हैं, प्रोसेसिंग क्वालिटी भी बचा रहे हैं, और आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। शायद मालूम होगा यूरोपियन यूनियन ने CIPC ट्रीटेड पोटैटो को बैन किया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ के पोटैटो को एक्सपोर्ट करना है तो रेडिएशन टेक्नोलॉजी करके आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इवन फॉर प्रोसेसिंग वेराइटी, और हम अपने डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज प्रोसेसिंग सेक्टर में आई थिंक पोटैटो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कंट्री में एज ऑन टूटे, एंड गुजरात का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप केमिकल यूज़ नहीं करते तो विद इन 100 डेज 100% स्प्राउटिंग हो जाती है। ये तो 7 महीना पुराना फोटोग्राफ्स है, बट आप 100 डेज में 100% स्प्राउटिंग पोटैटो में हो जाती है अगर आप CIPC यूज़ नहीं करते तो। और ये हमने लैब में ही नहीं किया, हमने गुजरात के ही फॉर्म के साथ एक MOU करके लार्ज स्केल ट्रायल भी किया 28 टन से, और वहाँ भी रिजल्ट मेहसाना में हमने किया था, वहाँ भी रिजल्ट बहुत सक्सेसफुल रहा। दूसरा प्रोडक्ट है ओनियन। ओनियन में भी यहाँ का पिलीपति ओनियन काफ़ी फेमस है, भावनगर महुआ का। ओनियन में अगर हम इरेडिएट करते हैं तो ओनियन को आप 7.5 से 8 महीने तक रख सकते हैं। और ये ट्रायल हमने बहुत ही बड़े स्केल पे किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के साथ, जहाँ पे हमने 1200 टन ओनियन रखे, और ये ओनियन 7.5-8 महीने के बाद 2023 में NCCF ने पूरे मार्केट में, जब प्राइस बहुत हाई था तो सेल कर दिया। यहाँ पे भी आपको कोई भी केमिकल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। ओनली थिंग यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज कंडीशन है, हम जो नया कोल्ड स्टोरेज हम लोग इसमें रिकमेंड कर रहे हैं, चूँकि ओनियन में वेट लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो हम रिकमेंड करते हैं आप 0.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में स्टोर करिए, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए, 65 से 68%। पोटैटो के कोल्ड स्टोरेज में ओनियन आप नहीं रख सकते। सो ओनियन के लिए, मेरा थोड़ा गला खराब है, तो ओनियन के लिए हमें 65 से 68 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है। एंड ऑफ कोर्स CO2 कंट्रोल कर। ये देखिए नासिक का फोटोग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, एक्चुअल जो ओनियन वहाँ रखा जाता है चाल में, सर हो थैंक यू, वहाँ जो ओनियन रखा जाता है, आप देखिए फंजीसाइड्स काफ़ी यूज़ होता है। आप हर लेयर पे देखेंगे उजला उजला फंजीसाइड्स यूज़ किया हुआ है, उसके बाद भी ओनियन में अराउंड 40 to 50% लॉसेस इनके होते हैं। बट ये हमने एक्चुअल फोटोग्राफ्स किए हैं गुजरात के ही फॉर्म के साथ, NSSPL के साथ हमने MOU करके ट्रायल लिया था। आप देखिए 7.5 महीने के बाद भी ओनियन का ओनली लॉस इज वेट लॉस, वो भी अराउंड 5 to 6%। ये ट्रायल हमने शुरुआत में 15 टन के साथ करी थी, बाद में हमने 50 टन किया, 250 टन किया, और फिर 1200 टन भी किया। तो ओनियन को आप ऐसे बचा सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए थे, संजोग से गुजरात से ही है अविनाश जोशी सर, और उन्होंने लगभग 2 घंटा हमारे साथ बिताया, और वो बहुत कंसर्न दिखा रहे थे पिलीपति ओनियन के बारे में। तो अगर आप लोग में से, मैं उस स्कीम के बारे में बताऊंगा अंत में, तो आप में से किसी को इंटरेस्ट हो तो नेक्स्ट वीक अगेन हमारी उनके साथ मीटिंग होने वाली है, तो हम इस चीज़ को आगे लेके बढ़ सकते हैं। और अभी दूसरा प्रॉब्लम है, जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हम ओनियन की बात करी तो उन्होंने बोला, क्योंकि एक इरिगेशन प्लांट की कैपेसिटी होती है, हम 10 से 12 टन पर आवर कर सकते हैं। उन्होंने बोला हमको ओनियन महाबैंक बनाना है, ओनियन महाबैंक में हमें 10 लाख टन ओनियन स्टोर करने हैं, तो अभी करंट जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी उसमें हम नहीं कर पाएंगे। तो वो बात BRC के सामने आई, और डायरेक्टर BRC ने इस पर काफ़ी सीरियसली वर्क कराया, और हमारी इंजीनियरिंग टीम ने एक नया डिजाइन खड़ा किया है, जहाँ पे हम 200 टन पर आवर ओनियन को रेडिएशन प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो एक फैसिलिटी एक दिन में 5000 टन कर सकती है, और 2 महीना हम इरेडिएट कर पाएंगे ओनियन, तो 2.5 लाख ओनियन एक फैसिलिटी से हो सकता। तो ऐसा 4 प्लांट हम खड़ा कर दें तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो रिक्वायरमेंट है 10 लाख टन का, वो हम कैटर कर पाएंगे। अगर गुजरात में भी आप इंटरेस्टेड है तो इसके लिए भी हम इसमें सोच सकते हैं। डिजाइन BRC की है। कमिंग टू मैंगो, मैंगो ऑलरेडी पहले के वक्ताओं ने बताया, केसर यहाँ का सिग्नेचर मैंगो है, बहुत ही अच्छा मैंगो है, एंड बहुत सारे वेराइटीज़ है यहाँ पे, लाइक केसर एंड तोतापुरी गुजरात के फेमस वेराइटीज़ है। अभी हम रेडिएशन प्रोसेसिंग के बाद मैंगो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। US को तो 2007 से भेज रहे हैं, उसके पहले 18 साल तक नहीं भेज पाते थे। अभी 2017 से रेडिएशन प्रोसेस मैंगो ऑस्ट्रेलिया भी जा रहा है, 2022 से मलेशिया, और 2023 से साउथ अफ्रीका। लास्ट ईयर जैसे पुजारी साहब ने बोला, सी रूट शिपमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज मैंगो अभी तक में अराउंड 3000 टन हम भेज पा रहे हैं, चूँकि हमारे एयर कार्गो काफ़ी लिमिटेड है। तो हमने 2022 में एक सी रूट कंटेनर ट्रायल लिया था, उसके लिए एक एडिशनल स्टेप हमने इंट्रोड्यूस किया, एक छोटा सा केमिकल USDA अप्रूव्ड प्रोटोकॉल है, बाद में हम उसे अप्रूव भी करा लिया, सो दैट हम मैंगो के राइपनिंग को डिले कर सकते हैं। और ये मैंगो हमने
5 जून को ऑलमोस्ट लेस्ट ऑफ द सीजन मुंबई से भेजा था। आप देख सकते हैं यूएस के मार्केट में पहुंच चुका है मैंगो 25 डेज में। अनफॉर्चुनेटली जब वहाँ पहुंचा उस समय इंडिपेंडेंस था, सैटरडे संडे था, 3 दिन तक पोर्ट पे पड़ा रहा। उसके बाद भी मार्केट में सक्सेसफुली ये सोल्ड आउट हो गया। इट वॉज कम्प्लीटली अप्रूव्ड बाई ऑल ESD रेगुलेटर्स एंड सोल्ड इन द मार्केट। सो ये टेक्नोलॉजी BRC के पास है। जो भी सी रूट शिपमेंट करना चाहते उसके बाद हम नहीं कर पाए क्योंकि रेड सी इशू हो गया, लॉट ऑफ फाइट्स आर गोइंग ऑन। बट जैसे ही नॉर्मलाइज होता है, अगर सी रूट करना है तो हम आप इसको हेल्प कर सकते। इतना ही नहीं, अभी टोमेटो हमारा लासलगांव प्लांट जो है वहाँ पे टोमेटो ऑलमोस्ट लास्ट ईयर 800 टन ऑफ टोमेटो रेडिएट किया। और आपको खुशी होगी जान के कि कंजम्पशन बाहर के लिए नहीं, हमारे जितने फास्ट फूड सप्लाई चेन है जैसे मैकडोनल्ड्स है, सबवे है, ये लोग यूज़ कर रहे हैं बिकॉज टोमेटो में पेस्ट का इशू है। और दे आर मोर कंसर्न कि अगर उनके प्रोडक्ट में पेस्ट आ जाता है तो उनका सारा मार्केट ओवरनाइट बर्बाद हो सकता है। तो सब इरेडिएट करके पेस्ट को किल करके यूज़ करते हैं। ब्रोकली के केस में देखिए इरेडिएशन करके उसके ग्रीननेस को, क्वालिटी को महीनों दिन तक मेंटेन कर सकते हैं। मशरूम के लिए मैंने प्रोसेस बनाया है इंक्लूडिंग इरेडिएशन कि आप 3 वीक्स तक मशरूम को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हमने बताया, ऐसे चूँकि टाइम कम है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट, अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो तो आप हमें लिखेंगे तो हम उसमें आपको हेल्प कर पाएंगे। उसके अलावा में जैसा कि पुजारी जी ने और इंडिया एग्रो के सर ने बताया, हम अब प्रोसेसिंग करते हैं तो हमारा वैल्यू एडिशन होता है। जामुन है, स्ट्रॉबेरी है, इसके प्रोडक्ट हमने प्रोसेस करके रेडिएट करके मार्केट में रखे। अमेजोन पे हमारे एक टेक्नोलॉजी होल्डर है, वो इसको मार्केट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और मेनी टाइम लोग बोलते हैं रेटेड प्रोडक्ट में एक्सेप्टेंस है नहीं है। आप देखिए यहाँ पे रेडोडा भी लिखा है, BRC का लोगो भी दिया है, सॉरी। और उसके बाद भी ये प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुली मार्केट में लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसका आप अमेजोन पे मार्केट में सेल हो रहा है, आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। अभी हमारे पास 31 प्लांट है कंट्री में, कमर्शियल फूड रेशन प्लांट। उसमें 7 गवर्नमेंट सेक्टर है, मतलब 2 तो DAE ने बनाया है, एक गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तमिलनाडु, आंध्र एंड बिहार। ये 5 प्लांट स्टेट गवर्नमेंट के हैं, 24 प्राइवेट सेक्टर में, 10 प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई स्कीम, ये तो ऑलरेडी हमने थ्रूपुट का डिस्कशन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना में नया स्कीम लेके आए। यहाँ पे लोग 35% ऑफ द दिस प्रोजेक्ट कॉस्ट और मैक्सिमम अप टू 10 CR दे आर गिविंग सब्सिडी। ये स्कीम अभी ऑन है। इसके अंडर में 17 MOU साइन हो गए। तो ऐसा नहीं, अगर फार्मर कोऑपरेटिव भी बना के करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, फार्मर कोऑपरेटिव के थ्रू भी कर सकते हैं। और आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर टेक्निकल कमिटी, तो हमसे जो भी हेल्प होएगा हम उसमें आपको हेल्प करेंगे। स्कीम अभी लॉन्च है। आपको अगर प्लांट लगाने हैं तो आप हमें अप्रोच करिए या मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को अप्रोच करिए, प्लांट लगा लीजिए कि ये स्कीम अभी चल रहा है। फिर गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या एक्शन करती है हम नहीं बोलते, बट अभी चूंकि ऑन है और अभी 17 हुए, 33 स्टिल अभी है। तो आप चाह रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके इसमें आपको मिनिमम 1 एकड़ और लैंड करने हैं और 10 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे देगी। रिमेनिंग फाइनेंशियल आपको मैनेज करना है, अराउंड 10 CR और सो। तो ये स्कीम ऑन है, प्लांट लगाइए। और सब मल्टी प्रोडक्ट प्लांट है। आप इसके साथ चाहिए तो कोल्ड स्टोरेज भी खड़ा कर सकते हैं, वेयर हाउस भी खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप एक अच्छा स्कीम बना सकते हैं। और ये सब जस्ट एक है कि कैसे आपको बनाना। सबसे पहले आपको ब्रिट के साथ MOU करना होगा, ब्रिटिश बोर्ड ऑफ रेडिएशन आइसोटोप टेक्नोलॉजी, वो हमारा यूनिट है DAE का। उसके बाद आपको ERB के अप्रूवल के डिफरेंट स्टेजेस है, डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल्स है, एंड फाइनली योर प्लांट्स। इट टेक्स अराउंड 1.5 ईयर। अगर आप बहुत फास्टली काम करते हैं तो 1.5 साल में, नहीं तो 2 साल में आपका प्लांट कमीशन हो जाएगा। और हमारे जो लाइसेंसीज है जिनको हमने टेक्नोलॉजी दी है वही प्लांट बनाते हैं। तो आपको केवल फाइनेंस और लैंड मैनेज करना है, रेगुलेटरी क्लियरेंस करना है, रिमेनिंग थिंग आपके प्लांट्स आप बना सकते हैं। एंड यू आर द ओनर ऑफ फैसिलिटी। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for expanding our horizons with your word of encouragement and knowledge. Next, I invite Mr. Arun Goel from Wageningen University, Netherlands, to speak on digital transformation in horticulture from farm to export markets. ठीक है।
सभी को मेरा नमस्कार। आपके लिए इंग्लिश थोड़ी सी ठीक होगी अगर मैं बीच बीच में अगर उस हिंदी का भी यूज़ करूं? विल इंग्लिश बी फाइन विद द ऑडियंस? आई कम फ्रॉम नेदरलैंड्स, बट गुजरात से बहुत पुराना मेरा रिश्ता रहा है। मेरा नाम अर्जुन गोयल है। आई एम अहमदाबाद से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया है। फिर गांधीनगर के आगे ग्राम भारती है जहाँ पे 1 साल मैंने प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो आई एम अहमदाबाद से हैं, सृष्टि इनोवेशंस के, सो मैंने उनके साथ भी 1 साल काम करा एंड ही हैज़ बीन अ मेंटर and along with Professor Sukhpal Singh, who has mentored my thought in the Food and Agriculture Society. Previously, when I joined this organization, which is a scientific organization, Wageningen University and Research, it's based out of Netherlands, more than 150 years old institution, and completely dedicated to food and agriculture life sciences. और इस presentation में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स तो बहुत सारे हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैन पावर डेवलपमेंट कैसे होता है, SOPs डेवलपमेंट कैसे होता है, मगर उसके पीछे की डच थिंकिंग और उनकी अप्रोच क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। सो जैसे हमने वी हैव हर्ड फ्रॉम द पैनलिस्ट बिफोर दैट देयर आर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, storage conditions are bad, but how certain countries are able to solve this problem and how we can solve this problem, and specifically in this region Rajkot can solve this problem, and if we understand the approach, that is more important. So thank you, first of all, for giving me this opportunity. I'm delighted to be here and would like to introduce my institution, Wageningen University and Research. It's an institution that has been at the forefront of solving all the world's pressing problems for more than a century. Can we go to the next slide? Yeah. You look at the figures, number 1 university, and ranked 59 in the world, but in categories of food and agriculture, it is ranked number 1. So these are close to, we have 7,000 employees, including professors and scientists, around 13,000 students that come across the globe from 120 countries, 320 PhD theses every year, and around 5,770, close to 6,000 academic publications every year. If you look at the geographic outreach of this institution, this is based out of Netherlands, but we have projects across 100 countries. We collaborate with governments, research institutions, companies to execute projects. So if you look at this figure, this is the campus we have. In the red, you have the university. And around that red campus, what you see are different companies and research institutions. So what makes Wageningen truly special isn't just the research that this institution or the academic or the science that this institution produces. It's the ecosystem that has been created, the campus itself designed as an engine of collaboration between different institutions. And I'll give you a very simple practical example because I'm still echoing with thoughts of my previous presenters. हम सभी same problem को solve कर रहे हैं मगर अलग-अलग तरीके से solve कर रहे हैं. We know we have to export the mangoes. We are concerned about the mango quality. We are concerned about the mango packaging. But what will happen is there is a research institution that is working independently. There is an academic institution that is working independently. एक exporter होगा जो अलग से अपने लिए मैंगो की प्रॉब्लम्स को और उसको एक्सपोर्ट करने की प्रॉब्लम्स को चैलेंज फील कर रहा होगा, और सिमिलरली एक इम्पोर्टर भी होगा जो कैसे मैंगो की क्वालिटी आए मार्केट के अंदर, वो भी इसी प्रॉब्लम से चिंतित होकर अपने आप को कोशिश कर रहा होगा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करूं. बट इस जो इन्होंने एक फूड वैली की दुनिया बनाई है वाgeningen के अंदर, इसका अप्रोच है दैट वी विल सॉल्व द सेम प्रॉब्लम टुगेदर. So what happens is there is a university, there is a fundamental science, there is an applied research institution, so scientists and professors come together. They also bring the companies on board. So in this case, likely there will be an exporter who will collaborate on a research project. There will also be an importer. And within the components of university and research, there will be people from packaging, there will be people who know the radiation technology,
There will be post-harvest experts. There will be handling experts. There will be people who can train you in the pre-harvest technologies. There will be a manpower development. So 7 to 8, components come together to actually fulfill one mission and solve one problem together. And this is where, my role as account manager climate funds comes. I serve as a business acquisition manager. So every unit has created a business management team which collaborate contractually to solve one problem. And this has been, one of the hallmarks for success of this institution, and in fact for Netherlands as the second largest exporter of food products in the world, because they build consensus, साथ में काम करते हैं, साथ में problems को solve करते हैं, contractually करते हैं, professionally करते हैं, और कोई भी एक problem को अलग अलग नहीं solve करेगा. So they don't work in silos. And this ecosystem, sir, has been enabled by the government. So this is an intentional design. What the government of Netherlands has done, they have attracted the investors over here, they have attracted the companies over here to solve the problems together. So this is the core mission. जो भी करना है साथ में हम problem solve करेंगे, not individually. And just to extend this example, even in India, we have research institutions, we have universities, but the question is, are they working together and are they working voluntarily together? So how do we enable that system that all my presenters who have been on the stage before me, they can come together and solve the problem of mango export from India. And unless we don't combine our energies together contractually and in business case, then we can't achieve the success. A little more about the campus. Around 2,000 companies are there, 7 research institutions, 25 NGOs. 23 corporates such as Unilever, PepsiCo have actually R&D units on the campus. And around 150, 200 odd SMEs, and they're all spread across the campus. It's been a concentration of different units in the same campus just to enable that people collaborate with each other more. And the kind of projects and scientific projects or academic projects that are funded over here, there is a very important element that you won't, again, to repeat, that you can't do research alone. So the government of Netherlands has created another architecture, which is a quadra-helical structure, that at least 4 partners will collaborate on a research project. So if the university has a problem, it is mandatory for the university to involve a research institution so that the fundamental science can reach out to the market. And you also have a company in the market that collaborates on the research, which can take out that product in the market. And you also have people, we conduct a lot of consumer studies. So whether if I'm taking out a product such as a mango pulp, will that be accepted by the society or not? So just to give you an example, in Wageningen, they created a research project and they made a cake out of insects. So it was an insect cake. Beautiful technology, lot of proteins in that. But when they finally placed, on the table and conducted consumer studies, they find out that people don't uptake such cakes. Similarly, they created proteins, which is alternative proteins from all the vegetables, and made that taste like chicken. And even that, to an extent, was failure because people really wanted the raw taste of chicken and meat, and they really didn't like the processed vegetables that were converted into a taste of a chicken. So as I said, that even the consumers and the NGOs are part of any work that we do. This is a structure of the university and the research institution. We are divided into 5 environmental groups, 5 sciences groups. The green part is the university and the blue part is the research. We are there together. We work on same problems, as I said. And the strength of the approach lies in cooperation between the university and the research towards the market. This slide shows the union of expertise. Again, to give you an example, around 7,000 people coming together at the same location. Technology that is developed by one institution is implemented by the companies into the market.
And now I start my real presentation. Wanted to give you an introduction of what Wageningen applies as an approach so that we are able to understand the content that I'm able to now present you. Now what I want to tell you today to this August audience is how do we improve our exports specifically for a region like Rajkot, and how do we build our export protocols, and the thinking behind that if we have to reach out to certain segments of the world, let's say we want to find out a market in Europe, in North America, in South America, elsewhere in the world, how do we do it, you know, and how do importers or exporters in different parts of the world are relatively today more successful than us. As we have seen in the presentation before, India today produces a lot of fruits and vegetables. We are actually one of the largest horticulture products in the market, but it is all domestic. We are not able to go out. You know, it is only 1 or 2% of the global export market. So we don't occupy any significant place in that market. Now let's see, if I look at a television, I know the specification that I want. It is very clear in my head. There is a 45-inch TV, there is a 50-inch TV, a 65-inch TV. And similarly, in the horticulture international market, they look at fresh produce, which is the horticulture products, as compared, in a way that is compared to an SOP with a complete specification. So they would look at a mango, and we saw a lot of mangoes pictures before. They would look like, okay, what is the diameter? They would completely tell you a range of that mango. They would specify a color. They would specify a particular taste, so that you know that if I'm taking a mango from Colombia or a particular region in Colombia, what that mango would look like. And this becomes a differentiator in the market. So in the past 15 years, we have, at least in my experience, the projects that have been implemented, they are implemented with the focus to improve the farmer's income. And farmer's income can only increase if we have a clear knowledge of the market, where the market lies. Rajkot is strategically important to this conversation. Gujarat is doing phenomenally well in agriculture field. Gujarat produces anar, mangoes, grapes, and cotton. Yet globally, Indian agriculture only occupies 1 or 2% of export value, even though we produce something like 45% of these commodities. Why? Because we are missing something very important, the systemic approach towards export markets. And today I'm going to share with you what I've learned working with all the exporters and scientific institutions, especially in different regions of South Asia, proven strategies that can actually working to improve the market access and also the farmer incomes. I can tell you from my own experience, many of you who are actually concerned about food loss and waste, about post-harvest losses, by the end of this presentation, and I hope if I get more time, you will know what we need to change in order to achieve the success. So it rests on 3 key pillars or 4 key pillars. One is, the first, we start always with conducting market studies. And second, we follow up the market studies with standard operating procedures. Along with making the standard operating procedures, we follow up with actually building the post-harvest infrastructure. And finally, if there is another intervention design that is required, we again go back and conduct an assessment whether the first 3 steps, that is the market study, the SOP, and the infrastructure is right. The importance of conducting the market study beforehand is to make sure that your success is ensured. So again, I will explain you with a very practical example. As on date, when I'm in front of you, I do not know whether an importer in UK is wanting a particular variety of mango, in what season he wants, what kind of specifications he wants. So what we are doing right now in most of the horticulture market in India is guesswork. We are guessing, yes, there might be a demand. Can you actually connect me with an importer? Can you know that there is a market over there? Do you know somebody I can connect with?
Now, this kind of conversation, what we find in large parts of India within the exporters, is all guesswork. And to eliminate the guesswork, the first step is conducting a thorough market study to come down to, sir, to a very precise information that in the month of July, is there an importer in Netherlands that requires a certain variety of mango? And can I get that mango variety with me? So the pillars, first is the market studies. This is where everything starts. You must understand where your products can actually sell and when those markets have a particular demand. Think about it. Right now, somewhere in the UK, there is a supermarket buyer saying, we need fresh mangoes in the market in the month of January or February. We are willing to pay you a particular cost, but is your quality very consistent? Can you assure me that you have a particular specification and consistency in your quality? But how would you know that? Without conducting a thorough market study and a thorough market assessment, we can never reach to that goal. Market studies actually answer 4 critical questions. When are international markets demanding a particular specific product? What exact specifications do each of them require, such as the size, color, sugar content, the pesticides residues? What competition are you going to face? So if I'm able to supply a mango, is there another exporter in Venezuela or in Colombia which is also exporting mango of a same specification? And the fourth one is, what prices can you actually command by timing your supply to that market? So if I'm supplying mango today in December, can I actually fetch more markets or more price from the market in the week of or in the month of July? So yes, we can do all this thing, again, if we conduct a market study. The second pillar that I've explained is the SOPs, which are the export protocols, as a lot of us call. This is about ensuring that the quality that meets international standards. But there is a harsh reality. Even if you know that a particular market needs your product, you won't access the market unless you assure the quality is consistent. Why? Because buyer will test you with one shipment, and if quality varies, that is, your box 1 varies from box 2, they are going to drop all your supplies and find a reliable supplier elsewhere. So SOPs are very detailed step-by-step instructions that ensure every farmer, every harvest, and every shipment, and mind you, if I go back again, every farmer, every harvest, and every shipment meets the same quality standards. We have seen the SOPs work across regions. We have done a collaborative project with Government of Maharashtra for mango itself. In Bangladesh, we have done for jackfruits. In Vietnam, we have done for cashews. And in Jordan, we have done for herbs. The critical point is every region has developed its own SOP for its key products. So you cannot have a standard SOP for mango for India, but you would have a particular SOP for mango for Rajkot region, because you produce a particular specified quality. But what I understand is that we need to put our steps towards producing such SOPs in this region. The third pillar is the cold chain infrastructure. The physical systems that are required to actually maintain these SOPs and the market demand, because you want to assure the quality from farm to the consumer. Now, this is where many of the projects actually fail, because people think that cold chain is just about building a cold storage and equipment, but infrastructure around without a market demand and quality standards become an expensive white elephants. And in our studies, we have seen close to 50% of the investments that go into making cold storages and different kind of post-harvest infrastructures, they fail because we have not completed the number 1 and number 2 step. That is, we don't have a market study with us, and neither we have product specifications or the SOPs in place. And pillar 4th is the intervention design assessment. The 4th critical component, which I will emphasize during this presentation, is before you invest a particular money, have you done a thorough assessment to ask, will this investment from the government or the private company or the research institution really going to work? So number step 1, 2, 3, and then go back, do an intervention, and improve your model. So yeah, let's go to the next.
Any questions? Any questions? I have a remark from the organizers that I need to shorten it down. But any questions that you feel up to now that I can answer, because the presentation is going to be very detailed. Normally with Wageningen we need 1 or 1.5 hours of time and space to really show you the details. So let us take some questions from the audience. You know, I'll be happy to answer. You know, if you have certain things to share, I can, you know, bring forward my own assessment and perspective. Yes, sir. What is the stand of Netherlands on the use of irrigated fruits from other part of the world? Sorry, sir, come again. No, what is the stand of the government of Netherlands with respect to the radiation processing of the fruits? To be very honest, I may not know this because, yeah. Any sir question towards post-harvest or export development, or yeah, how do we actually bring more price to the farmers? I'll be happy to answer. Yeah. Sir, yeah, please, sir. I see that you have a lot of thoughts in your mind, and I'll be very happy to answer that. Yes, sir. Are you working with some other state governments regarding improvement this horticulture? Yes, sir. As of now, we are working with the government of Maharashtra, very strong collaboration with government of Maharashtra on export development. And as I showed before, we have brought this methodology that you have to start with the 3 steps. That is first the market studies, the SOP development, and then the infrastructure development. So we are doing with the government of Maharashtra. We have a second project with government of Himachal Pradesh, so we are already there. And with government of Gujarat, we have done an MOU, but we would like to see the actual steps in this territory. Yeah. Sir, in Mehsana we signed an MOU. Mehsana we signed the MOU with Wageningen and government of Gujarat. And I think now there is a lot of steps which we need to actually look at and take it forward, sir. Yeah. So any question? Anyone from you? Ma'am, anything from you? Yeah. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब मैं गया था नेदरलैंड्स 5 साल पहले, तो मैं भी बिल्कुल चुप करके बैठ जाता था, और वहाँ इसको नेगेटिव माना जाता है क्योंकि अगर आप नहीं बोलते हो तो मेरे डायरेक्टर ने फिर मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि भाई इतना चुप क्यों बैठते हो, तो उन्होंने यूजुअली कहा कि भाई जी सर बताएं। अच्छा, हाँ, वो मैं मानता हूँ कि वो ट्रांसलेटर होना चाहिए था, बट मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझसे पूछा, उन्होंने बुलाया कि आप काम तो बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि इंडियंस यूजुअली बहुत अच्छा काम करके देते हैं, और उन्होंने एक दिन मेरे को बड़ा प्रेज़ करा। तो मुझे लगा मैंने तो ऐसा कुछ काम भी नहीं करा, यहाँ तो आप 10-12 पेजेस 20 पेजेस फटाफट लिख देते हो, तो इनके लिए बहुत काम था। बट उन्होंने कहा कि आप अकेले बहुत रहते हो, और वो इंडियंस की जो हमारी खुद की भारतीय लोगों की टेंडेंसी होती है, क्योंकि बचपन से हम कंपटीशन में रहते हैं और अकेले रूम में पढ़ने की बहुत आदत होती है, एंड हम एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते हैं। और वहाँ पे जो नेदरलैंड्स में, हॉलैंड में जो मैंने सीखा, वो देश 1/4 उन्होंने पानी से निकाला हुआ देश है वो। तो उनसे मैंने पूछा आपने करा कैसे, तो उन्होंने कहा हम अपने दुश्मन को भी अपना साथी मानते हैं, क्योंकि अन्यथा जो एनवायरनमेंट जैसा है, इतना पानी है, हम डूब जाएंगे। तो अगर मैं अपने साथी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ नहीं काम करूँगा, तो फिर ये लाजमी है कि मैं बिल्कुल पानी से डूब जाऊँगा। तो इसको वो पोल्डर सिस्टम बोलते हैं। तो उनके पॉलिटिकल सिस्टम में, उनके राजनीतिक जीवन में, उनके बिजनेस कल्चर में पोल्डर सिस्टम बोलते हैं, कंसेंसस सिस्टम है। और इसका मैं एक और उदाहरण दूंगा कि अगर हम 4 या 5 लोग हैं जिन्हें एक निर्णय करना है, तो अगर पांचों की सहमति नहीं है तो मैं वो डिसीजन नहीं ले सकता। और मान लीजिए एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं इसमें मंजूरी नहीं देता हूँ, तो फिर चारों उसको कन्विंस करेंगे कि क्यों आपको ये सही डिसीजन है। और जब तक वो 5वां व्यक्ति पूरा सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, उस डिसीजन के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। तो उनका जो कंसेंसस सिस्टम है, जैसे मैंने वाकनिगन में पहले समझाया
कि लोगों का है कि कोई भी प्रॉब्लम हम अकेले नहीं, इंडिविजुअली नहीं सॉल्व करेंगे, साथ में काम करेंगे। और इसके लिए उन्होंने अपने बिजनेस सिस्टम्स भी बनाए हैं कि मेरे जैसे उन्होंने इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर्स बुलाए ताकि, और मैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज करता हूँ ताकि एक यूनिवर्सिटी का जब प्रोफेसर साथ काम करे और एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन का साइंटिस्ट साथ में काम करे, एक कॉर्पोरेट लीडर साथ में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिखेगा कि आपस में बाद में इनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए झगड़े ना हो। तो ये वाकनिंग एन अप्रोच है जो मैं चाहूँगा कि वो भी हम भी यहाँ पे अडॉप्ट करें, that we have to actually, we have a lot of problems and we identify those problems. We have merit, we have highest talent and merit in the world. Our engineers and software engineers, scientists are throughout the world. In fact, in Wageningen, जो artificial sir intelligence की टीम है वो पूरी इंडियंस की टीम है, और उन्होंने एक और नई यंग साइंटिस्ट रिक्रूट करी, तो उनके डायरेक्टर ने अगेन मुझे बुला के गया कि देखो एक और इंडियन आ गए अब तो यहाँ पे। तो उसने कहा वो किसी सम IIT खड़गपुर से है। तो मैंने कहा वो सम IIT खड़गपुर नहीं है, वो द IIT खड़गपुर है। तो हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास वी आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, मगर जो मुझे लगता है जहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करना है, जहाँ हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है, दैट इज़ दैट वी कम टुगेदर टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम टुगेदर। Again, if I look at the air pollution in Delhi, the Dutch government has actually recommended a lot of steps कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम हो। तो आप देखते हैं विभिन्न विभाग जो हैं सरकार के या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो अलग अलग जाके काम करती हैं। प्रॉब्लम सबकी एक है मगर अलग काम करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक कुड बी वन ऑफ द लर्निंग पॉइंट्स, बिकॉज वी हैव द टैलेंट, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, बाकी सब है हमारे पास। या गुड सर, थैंक यू। Thank you, sir, for your word. I now request. I now request Asimina sir, Principal Secretary, Agriculture, Farmers Welfare and Cooperation Department, Government of Gujarat, to give his word. नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मेरे लिए सब्जेक्ट बिल्कुल नया है। लास्ट वीक ही मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का चार्ज लिया है, तो ये सब चर्चा देखी तो बहुत डेप्थ में चर्चा करी। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स का प्रेजेंटेशन थे, आपका भी प्रेजेंटेशन था। मेरा इतना ही कहना है कि गुजरात सरकार बहुत सारे प्रोग्राम्स इस सेक्टर में लाई है, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। गुजरात में बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको जैसा आगे बढ़ना है आप बढ़ सकते हो। मतलब फार्मर को ही सपोर्ट नहीं कर रहे, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जितना भी सपोर्ट चाहिए वो भी गवर्नमेंट आज कर रही है। और जो पूरा सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, इतना ग्रोथ है कि हम सोच नहीं सकते। जैसे प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि करीब 30-35% हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो रहा है, उसको हम इमीडिएटली रोक सकते हैं। बार्क से जो प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि भाई हम रेडिएशन टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी चीज़ों को बचा सकते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से आपके साथ में एक चर्चा करेंगे, और जो कोट सौराष्ट्र के जितने ज़िले हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैंगो में तो हमने नाम कमाया ही है, अब पामोग्रेनेट्स और बाकी चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा डिमांड करें, एंड इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि इंडिया खुद में भी बहुत सारी डिमांड है। आज इंडिया का एक मिडिल अपर क्लास जो सोसाइटी है उसको अच्छे फ्रूट्स की ज़रूरत है, परंतु शहरों में वो चीज़ नहीं मिल रही है। उसको लगता है कि ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हमको उस चीज़ का, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेना है। भारत सरकार की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिवीज़न है, मिनिस्ट्री है, उसकी तरफ से भी बहुत सारी सुविधाएं हैं।
तो सबका लाभ लेना चाहिए। और वी शुड इंश्योर कि भाई आज यहाँ आए हम इस वाइब्रेंट गुजरात समिट में, तो कुछ मतलब आप निश्चित करिए, हमारा हर ज़िले में ऑफिसर है, स्टेट में ऑफिसर है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, आप बताइए आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, एक्सपोर्ट में क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, क्या हमारा पोर्ट फैसिलिटी चाहिए। मैं पोर्ट डिपार्टमेंट में था तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई पोर्ट्स का क्या पोजीशन है। हम लोग बहुत तेज़ी से पोर्ट की फैसिलिटीज़ भी बढ़ा रहे हैं, न केवल मुंद्रा पोर्ट, बाकी पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा आगे आ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने कांडला पोर्ट हो गया, इधर बहुत नज़दीक में हमारा दक्षिण में देखेंगे तो वर्धमान पोर्ट है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी वलसाड़ के आजू बाजू एक बहुत बड़ा पोर्ट ला रही है, तो एक्सपोर्ट की पूरी संभावना है। अब बस आप लोग उसमें इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है हम लोगों को और आगे बढ़ना है। डिपार्टमेंट की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, पर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि वेस्टर्न पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वो पैरामीटर्स को हमको मीट आउट करना है और हमारी जैसे फॉरेन यूनिवर्सिटी की तरफ से भी हम लोगों का एक MOU है, तो उनसे भी हम समझेंगे कि वेस्टर्न लोग, यूरोपियन लोग, अमेरिकन लोग किस तरह से किस चीज़ को चाहते हैं, उस तरह से हम लोग सारा काम करेंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप आए, बहुत अच्छे से इंटरेक्टिव सेशन हुआ और बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइजर्स और वर्ल्ड बैंक की टीम ने ये सब अरेंज किया। हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर, हमारे रजिस्ट्रार साहब ने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। Thank you, sir, for your words of wisdom. I now request all the dignitaries to please come on the stage for memento. As a mark of respect and gratitude, I request Shri R.C. Meena sir to honor our esteemed dignitaries with mementos. I request Shri R.C. Meena sir to give a gratitude of token to Dr. Keshav Pujari sir, ex-Associate Dean, Dapoli Agriculture University. I now request him to give a token to the Dr. S. Gautam, Head of Food Technology Division, Bhabha Atomic Research Center. I now request him to present a memento to Mr. Arjun Goyal, Wageningen University. I now request him to present a memento to Shri Mansi Shishodia sir from India Agro. I now request him to present. Done. ठीक है, चलो. As we conclude, I invite Shri Shri C.M. Patel, Joint Director of Horticulture of Gujarat, for closing remarks and vote of thanks. Namaskar. At the successful conclusion of the seminar, it is my proud privilege to provide vote of thanks.
I would like to express my special thanks to our Honorable Principal Secretary, Sir, R.C. Meena, Sir, for his constant support and guidance in the organization of this seminar. I also thankful to the esteemed speakers, Mr. Arun Goel, Dr. S. Gautam, Dr. Keshav Pujari, and Mr. Mansingh Sosodia. I also thankful to the farmers, FPOs, our officers, media, and the team who supported for this for successful of this program. Thank you very much. Abar. I would like to thank all the participants and dignitaries. Have a great day ahead.